We just watched a very interesting movie scene. I would like to know from each and every one of you, what are your learnings? Is the chat window open? You can also right now unmute yourself and just tell me one word. Okay, I'm reading from the chat. Believe in yourself. Yes, what more? What did you learn? What was your takeaway? Yes, please unmute quickly and just give me one word. That nothing is by accident. Nothing is by accident. Yes, that's true. What else? There is no right or wrong. There is no right or wrong. What more? There's more You can't change nurturing. destiny. Okay. Everything is We possible. can. Okay. Everything is. Okay. Right. You know, okay. I'm just waiting for some more. It's this one very interesting thing. Two very interesting things are my takeaways. I'm going to be sharing them with you, but I'm just waiting for some more. What you saw, shall you reap? Yes, that's true. Yes. Shall I tell you about two things that just stayed with me and impacted me when I watched this movie for the first time, and this dialogue just stayed with me forever. That is, there are no accidents. Anyone here who's not comfortable with Hindi? Anyone who's completely an English speaking person? Right. In that case, I'm going to be making this a mix of English and Hindi. So, what stayed with me is that this universe has such strong, complex, complicated, yet very defined, structured weaves. It has such solid plans that it does not create accidents. It is so structured, it is so organized that whatever's happening, we feel, oh, I think God sent me to a wrong era. He sent me on a wrong planet, maybe a wrong dimension, but there are no accidents. Everything is a soul's plan, soul's purpose, and so much more. And second is, did you realize that when Master Shifu needed Master Ukwe the most, his time was to take responsibility in himself. And Master Ukwe just left because it was his time to cross over. Sometimes we believe certain person will help me, certain thing will help me, certain something will come from outside and help me build my life. But does the life go the way you planned? Does the life happen the way your brain thought how it should happen? Today, I want to bring about a very interesting conflict that we all go through. Every day, we surrender to our brain. आज ये होना चाहिए, आज वो करना चाहिए. Logical mind coming forward and saying that, hey, I want to be achieving this, hey, I want to be doing that. And when that does not happen, we have many speculations about everything to anything. And then we are constantly racing and trying to do something that will bring us closer to our brain's plan, only to realize that in one day, we've not spent one moment asking our souls, tell me, what do you need? And who is really driving your life? Is it your brain or your soul? Your soul has already made the plan. It is driving your life. आपकी सोल ही ड्राइव कर रही है और आप उसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो. आप अपने ब्रेन से तो कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है that the brain takes you somewhere else, the soul wants to go somewhere else. And this is where we are going to be starting with our webinar. But before I begin with today's webinar, I'm going to be beginning with a beautiful quote.
The quote by Swami Vivekananda. He said, the powers of mind are like the rays of the sun. When they are concentrated, they illumine. जब कंसंट्रेशन से बैठोगे, काम करोगे, तो रोशन हो ही जाओगे. I want all your attentions to be like those morning sun rays who have all of them come together to shine brightly. You all are sitting here like a beautiful soul community. Look at all the faces that are smiling on the screen. Give them a high five. Thank them for joining with you today. And I thank all of you, giving you a high five for joining me today because it is going to be an amazing, beautiful journey. इस जर्नी में आज जो हम करने वाले हैं, जो बाकी वेबिनार्स की तरह नहीं है. हमने बहुत सारे वेबिनार्स में फन किया, लर्न किया, और भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस करे. आकाशिक इज वेरी डिफरेंट. आकाशिक एक ऐसा वेबिनार है जहां हम बहुत इंसाइटफुल होंगे, डीप जाएंगे, डीप जाने की कोशिश करेंगे, एंड येट उसको बैलेंस रखेंगे. बिकॉज आप में से कई लोग पहली बार जुड़ रहे होंगे आकाशिक में, राइट? एनीवन हु इज कंप्लीटली न्यू टू द टॉपिक, प्लीज रेज योर हैंड्स. जस्ट टाइप me in the chat window here so that I know कि मुझे कहाँ से शुरू करना है. And people who have already had some kind of experiences, just write E in the chat window so that I know that you have had some kind of experience with the realm of Akasha. लेकिन आपका ये वेबिनार है वो सबके लिए है, क्योंकि ये लेकर आया है नॉलेज एंड लर्निंग. यू विल बी एबल टू नेविगेट योर लाइफ, फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या आने वाला है, कैसे हो रहा है, when you learn Akashic. And you can also turn it into a beautiful, fulfilling career with a great income source. Those of you who are here to help others, your family members, friends, this is a great value addition. और आप में से जितने लोग टैरो, रेकी, कार्ड रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, you should not miss out on Akashic records. ये किसके लिए नहीं है? अगर आप यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हो कि हाँ चलो देख लेते क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्शन टेकर, ये आपके लिए नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि आकाशिक सीखना बहुत डिफिकल्ट है, भैया ये अपने बस की काम बात ही नहीं है, तो आप पहले ही हार चुके हो. ऐसी कोई बात नहीं है. बट नो, दैट्स नॉट फॉर यू. दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी फॉर एक्शन टेकर्स, बिकॉज आज आप ऐसी चीजें लर्न करोगे जो आप वापस लेकर जाओगे, एंड देर आर गोइंग टू बी अमेजिंग बोनसेस. तो अगर आप बहुत कंटेंट है लाइफ में, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्विक फिक्सेस मिलने वाले हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. अगर आप वो है जो अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में, अपने सोल में और उसकी उन्नति के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टेप्स लेना चाहते हैं, टुडेज वेबिनार इज फॉर यू. तो आज के वेबिनार में मैं आपको क्या क्या देने वाली हूँ? मैं आपको देने वाली हूँ एक्सरसाइजेस जो आज आपको हेल्प करेगी. बोनस के तौर पे आपको मिलेंगे मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, एक पूरा ऐसा कंटेंट जो आपको आगे चल के ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा. वी ऑल नो कि आकाशिक इज, और सम ऑफ अस नो कि आकाशिक का एक बहुत बड़ा तोड़ होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क करना. आज जितने लोग एंड तक रहेंगे, अभी से लेकर बिल्कुल एंड तक, उनको हम ईमेल करेंगे आकाशिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की एक हैंड आउट, जो आपके एवरीडे लाइफ में आपको हेल्प करेगी टू क्लियर आउट योर वाउज, योर ओथ्स एंड योर कॉन्ट्रैक्ट्स. और आपकी इस जर्नी की शुरुआत आप अभी से कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्नॉलेज यू एंड अप्रिशिएट यू फॉर बीइंग हियर, वॉकिंग दिस पाथ विथ मी एंड शेयरिंग दिस सेक्रेड स्पेस विथ मी. आज के लिए अगर आपको बेस्ट चाहिए, नोट्स बनाइए, इंटरैक्टिव रहिए, stay till the end and participate. In this work today, we are going to be having little less fun. We will try and make everything beautiful. तो आज का मेरा ये एजेंडा है that I will align all of us and our practicalities, our realities and material aspect with our soul purpose. हम हमारे आकाशिक गाइड से मिलेंगे, बाकी और जितनी सारी चीजें करना चाहते हैं या मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट 3 hours ऑफ वर्थ. सो कुछ चीजें मैं आज करूंगी, कुछ चीजें जो आज नहीं करूंगी
वो सैटरडे के वेबिनार में करूंगी। तो आई एम ऑलरेडी इन्फॉर्मिंग यू दैट देयर इज गोइंग टू बी वन मोर वेबिनार ऑन आकाशिक। That day, we are going to be doing some kind of learning on Saturday around 11:30. The timings will be shared with you, so you should not miss out on that. तो बेसिकली मैं आपको ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ कि आप आकाशिक मास्टर कैसे बने और उसमें भी प्रो लेवल कैसे अचीव करें। तो सबसे पहले, दोज ऑफ यू हु आर completely new to me, my name is Siddhi Shah. I'm a divination expert, spiritual energy activation coach, and a TEDx speaker. पिछले कई सालों में I've been a fortunate and able to be a master of more than 100 healing courses. चाहे आप कोई भी नाम लो, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामाफेरा ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर, न्यूमरोलॉजी, मैग्निफाइड हीलिंग मास्टर, टीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब की मास्टरी मेरे पास रही है। आई एम अ फाउंडर ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स हीलिंग सिस्टम्स। मैं वर्क करती हूँ एंजल्स, ड्रैगन्स, गॉडेसेस के साथ टू क्रिएट अ वंडरफुल लाइफ एंड जर्नी फॉर मी and to transform so many people's life. In the last 5 years' time, I've empowered more than 11,000 people with my readings, healings, and teachings. और आज हम बात करेंगे एक ब्यूटिफुल डिविनेशन, जिसको मैं डिविनेशन एग्जैक्टली नहीं कहूंगी। डिविनेशन बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसमें एक है जो सबके कोर को टच करते, वो है आकाशिक। तो जब मेरी डिविनेशन स्टोरी आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता है, स्टार्टेड विद कार्ड रीडिंग। बट धीरे 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 मैं जैसे आगे बढ़ी, तो आज मैं कार्ड रीडिंग के बारे में कुछ नहीं कहने वाली हूँ। धीरे 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 व्हेन आई मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, आई वॉन्टेड टू बी रिजॉल्विंग सो मेनी थिंग्स। मुझे रिलेशनशिप्स भी रिजॉल्व करने थे, मुझे मनी एनर्जी भी रिजॉल्व करनी थी, मुझे हर एक चीज रिजॉल्व करनी थी। और जो चीज सही थी उसको भी ज्यादा रिजॉल्व, मतलब रिजॉल्व नहीं करनी थी, उसको और आगे बढ़ानी थी। तो मैं शांत बैठना ही नहीं चाहती थी। तब क्या हुआ, तो मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ये इतना 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 करने से अच्छा है सब चीजों का कोर ढूंढो। जब चीजों का कोर ढूंढ के सीधा कोर पे, सीधा रूट पे आप हील करोगे, वार करोगे, तो बहुत सारी चीजें अपने आप हील होने लग जाएगी। एंड दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड सर्चिंग मोर एंड मोर एज टू सीधा सोल लेवल पे क्या करेगा, सीधा पास्ट लाइफ को क्या, चाहे वो असर थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले दिखने में, बट मैंने हिट राइट जगह किया है। तो अगर मैंने हिट कर दिया है, उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे वैसा काम चाहिए। दैट पॉइंट इन टाइम आई केम अक्रॉस आकाशिक। आकाशिक यूजुअली लोग बिलीव करते हैं कि इट इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ्स। इट्स नॉट। इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन फ्यूचर। विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। बट जब बात आई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की, सोल इम्प्रिंट्स की, सोल पैटर्न्स की, सोल ने इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे हैं उनको तोड़ के नए बनाने की। तो आकाशिक turned out to be a great value add for me। तब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद मैंने ऐसे 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 चीजों को पकड़ा और चेंज किया। आई कुड सी माई लाइफ, जो कि ये स्पिरिचुअल जर्नी मेरी इस लाइफ में रही है, पिछले कई एटलीस्ट 27 लाइफ से मैं जीती आई थी। और वहां से हर एक लाइफ में मेरे क्या पावर्स थे, मेरे क्या इंसाइट रहे, मेरे कौन गाइड्स थे, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे वही जर्नी फॉलो करनी चाहिए जो मैंने शुरू करी थी, या मैंने अपनी जर्नी को इवॉल्व करना है, ये सारे आंसर्स मिले। पास्ट लाइफ के कुछ पावर्स को मैं इस लाइफ में एक्टिवेट कर पाई, ड्रॉ इन कर पाई। तो इससे मुझे और फायदा मिला। And when I could do it, I shared it with so many people who I was teaching to at a later date. तो इसका थोड़ा सा एक इंसाइट आप आज सब मिलके ले एक साथ। आप में से कितनों ने मेरे साथ सोल जर्नी एक्सपीरियंस, सोल जर्नी की लर्निंग ली है इन महाकाली वेबिनार? एनीवन हियर हुज टेकन इट? नहीं? ऑलराइट, इन दैट केस
I believe all of you are completely new, so we are going to be exploring a journey. This is going to be a great reminder अगर आपने ऑलरेडी करी है। अगर नहीं करी है तो हर एक सोल के साथ क्या होता है ये आज हम समझेंगे। एक सोल है, जैसे मैंने कहा, कि वही रूल करती है एक ह्यूमन लाइफ को, क्योंकि जो बॉडी है हमारी, वो तो सोल कपड़े की तरह बदलती है कि भाई इसका काम हो गया, इसको निकालो, हम दूसरी जगह, दूसरे शहर, दूसरे डायमेंशन में चले। बट ये बॉडी इस सोल का एक वेसल भी है, वो हमेशा ही कनेक्टेड रहती है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये सोल क्या करती है? ये सोल सपने के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा एंड बहुत सारे अदरवाइज कनेक्शन के द्वारा ह्यूमन माइंड में चीजें डालते रहती है कि भैया ये करना है, दिस इज व्हाट आई एम इंस्पायरिंग यू टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, वगैरह वगैरह वगैरह। जो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सपने देखे हैं एंड दोस टर्न्ड आउट टू बी अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ? अगर ऐसे डीजा वू मोमेंट्स रहे हैं, योर सोल वाज एक्टिवली डूइंग समथिंग फॉर यू। डू वी अग्री? अब ये पूरी लाइफ में चलते रहता है कि सोल ट्राइज टू टेक ओवर और ब्रेन ट्राइज टू डू दैट, बट एक्चुअली सोल की जर्नी कैसी है वो यहाँ से सीखेंगे। जब एक सोल क्रॉस ओवर करती है, क्रॉस ओवर करने के लास्ट 7 मिनट्स उसको लिया जाता है एक बड़ी सी लार्ज स्क्रीन के सामने। तो ये स्क्रीन में एक्चुअली है क्या? इसके अंदर सोल की लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स प्ले हो रहे होते हैं, ऑल द वे फ्रॉम द सोल was born till this very minute, till the last breath. The soul is taking all the happy moments, all the challenging moments, all the learnings, all the fun, everything। मतलब इसमें ऐसी कोई चीज, बचपन की, जवानी की, ऐसी कोई भी चीज छूट नहीं जाती है। वो सारे स्क्रीन इस तरीके से प्ले हो रहे होते हैं, सारे सीन्स इस तरीके से प्ले हो रहे होते हैं, जैसे कि ये सोल के लाइफ का रिव्यू चल रहा है। तो इस रिव्यू में एक्चुअली हो क्या रहा है? इस रिव्यू में एक चिट्ठा बन रहा है इस सोल के लिए कि भैया आपने इस लाइफ में ना 5 लर्निंग करने थे, आपने करे सिर्फ 3, 2 बाकी है। You did so many good things, well done, but you have done 3, 4 mistakes. Let's consider it 4. तो इसके भी लर्निंग्स आपने लेने हैं। तो अब आपके लर्निंग्स हो गए 2 + 4, यानी कि 6। अब ये जो सारा रिव्यू हो रहा है ना, तब सोल के आसपास सोल के गार्डियन स्पिरिट्स खड़े होते हैं। दे आर देयर टू सपोर्ट द सोल। अगर सोल को कुछ भी पूछना है, दे आर देयर टू सपोर्ट द सोल, बट दे नेवर मेक एनी डिसीजंस फॉर द सोल। ये डिसीजन हमेशा सोल का ही रहता। तब सोल ने लेने हैं 6 लर्निंग्स, और सोल को पूछा जाता है भैया बताओ कितने लाइफ में ये लर्निंग लोगे? तो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव सोल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम से भैया मुझे तो एक ही लाइफ में सब दे दो। और वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, ना हेल्थ ठिकाने हैं, ना वेल्थ ठिकाने हैं, ना रिलेशनशिप्स ठिकाने हैं। सम सोल्स हु वांट टू हैव फन इन एवरी लाइफ, वांट टू गो इजी, कहते हैं, मुझे एक लाइफ में एक ही लर्न। एंड देयर आर सोल्स हु आर समवेयर इन बिटवीन, हु विल से कि ओके एक लाइफ में 2-3 लर्निंग लेते हैं। तो ये वाली सोल ने डिसाइड करा कि मैं अपनी लाइफ में ना 2-3 लर्निंग लेके ही रहूंगा। देन ही वाज सेंट इन अ रूम। तो अब तक सोल क्रॉस ओवर हो चुकी है, ये ट्रांजिट कर चुकी है, और उसको इस रूम में भेजा जा रहा है जहां पे बहुत सारी सोल्स हैं। तो भैया यहाँ पे भेजा क्यों है? यहाँ आके वो बहुत सारी सोल्स को मिल पाएगा। तो इस सोल ने डिसाइड किया कि इस लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप की लर्निंग लेंगे। So he goes to a person and says कि hey, I want to take some kind of money learning for myself. Will you come into my life and cheat me? So this guy says तुम्हारे लिए मैं क्यों करूं? भागो यहाँ से। So नहीं बना contract. He goes to a woman and says that hey, I'm looking out for relationship learnings. Is it all right for you to come into my life?
एंड शी सेज ये मेरा भी लर्निंग है, एंड ऑफ कोर्स आई विल डू इट फॉर यू। तो यहाँ पे बन गया है कॉन्ट्रैक्ट। Goes to someone else and says that, hey, I have this learning in my life, will you do that? She said, no, I cannot do that. But जब आप अपने लाइफ का सबसे खतरनाक समय बिता रहे होंगे, I will come into your life and give you that learning, give you that direction that will change your life. अरे ये भी तो चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसी और ने डॉक्टर बनना चूज किया, किसी और ने गुरु बनना चूज किया, किसी और ने बेस्ट फ्रेंड बनना चूज किया, कोई डैड बन के आ रहा है, कोई मॉम बन के आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे ढेरों लर्निंग्स बन गए, कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए। और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सोल बनाते रहता है। वो यही इसी रूम में यही करने आया है। यहाँ तक कि ये सोल को ये भी पता है कि ये वाले लाइफ में किस तरीके का लुक होगा, किस तरीके का रेस होगा, किस तरीके का डीएनए होगा, कौन सी एज में ये सब होगा। तो आप देखोगे इस सोल ने एक चीज करी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इज दैट सोल ने एक टाइमलाइन डिसाइड कर ली है कि इस लाइफ में इतना ही रहेंगे यहाँ पे, इस लाइफ में ये टाइम पे ये होगा ही होगा। व्हेन आई टर्न दिस मेनी इयर्स ओल्ड, ये लर्निंग, ये पर्सन आना ही आना है। इमेजिन यहाँ तक के, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू द डायलॉग अगेन, देर आर नो एक्सीडेंट्स। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और एक पर्टिकुलर पर्सन आपको आकर कुछ पूछ रहा है कि भैया मेरे को डायरेक्शन दिखा दो, ये शो मी हाउ डू आई रीच योर, दैट ऑल्सो इज नॉट एन एक्सीडेंट। देयर आर थिंग्स दैट हैपन इन अ वेरी अनकैनी वे। इन चीजों को समझना उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना उनको जीना होता है। लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हर मिनट, हर सेकंड के लिए एक्टिव होते हैं। तो इस लाइफ में जब आता है इंसान, व्हाट इज द पर्सन इज बाउंड बाय, पर्सन इज बाउंड बाय द एनर्जी ऑफ टाइम। कुछ भी बदल दो, टाइम बदल सकते हैं क्या? कैन वी गो बैक? वी कांट। कैन वी गो इन फ्यूचर and come back? Only in our imagination. वो सारी लिबर्टी हमें नहीं मिली है। और एक बहुत स्पेसिफिक टाइमलाइन मिला है, दैट इज द टाइमलाइन ऑफ आवर लाइफ। इतने ही टाइमलाइन में हमें हमारी बहुत सारी चीजें रिजॉल्व करके जाना है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रिजॉल्व करके जाना है, बहुत सारी चीजें खत्म करके जाना है। बिकॉज हाउ मेनी ऑफ अस फील कि भैया मोक्ष की तरफ आगे बढ़ो भाई, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं जी सकते, फटाफट करो, कम लाइफ में जितना ऊपर जाए, जितनी जल्दी मुक्ति मिले। डू वी ऑल फील इट समटाइम्स? बहुत हो गया। डू वी? राइट? आई सी द नोट्स, बी एक्टिव ऑन द चैट सो दैट आई, द वे आई एम टॉकिंग टू यू, your response is my food. So the more you'll respond, the more I'll be fed, the more I'll be fed, the more I will be energetic. जितनी एनर्जी मुझ में आएंगी उतनी और मैं आपको देते जाऊंगी। ठीक है? नाउ लेट्स बी मूविंग फॉरवर्ड। तो इन सब सारी चीजों में आकाशिक का रोल क्या है? Why do we need to learn और परफॉर्म आकाशिक? तो ये क्या करता है आपके लिए, वो सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्टली आपके जितने भी सवाल है ना कि क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या करा था जिसकी वजह से ये हुआ, सारे क्यों का जवाब आपको आकाशिक से मिलता है। अगर आप अपने सोल के इम्प्रिंट से, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट से रिकैलिब्रेट करना चाहते हो, या तो सोल के इम्प्रिंट को कंप्लीटली नया बनाना चाहते हो, सोल के साथ वर्क करना चाहते हो, दिस इज द थिंग। अगर आपके पास्ट लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स को जानना चाहते हो, यू वांट टू अनकवर देम एंड देन हील देम,
ताकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप्स आप हील कर पाए, पास्ट लाइफ के फियर्स और फोबियाज हील कर पाए. दिस इज समथिंग आई एम डूइंग करंटली. आई एम हीलिंग समवन्स फोबिया एंड फियर्स इन विद जस्ट few sessions. I'm seeing the person's phobias and fears of so many years just go out like this. इतना पावर है आकाशिक में. इसके अलावा भी ढेरों बेनिफिट्स हैं, बट मैंने उसमें से कुछ चुन के आपको बता रही हूँ. जब कोई रिपीट कार्मिक पैटर्न्स आपके लाइफ में होती है, बस बार बार रिपीट किए जाती है, उसके ऊपर आपका ब्लाइंड स्पॉट है एंड यू डोंट नो व्हाट नीड्स, आई मीन व्हाट शुड यू डू टू हील दैट. किसी तरीके के एंसेस्ट्रल वूंड्स हैं कि भैया इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं था, ये मिस्टेक मैंने नहीं करी है, या तो ये एनर्जी मैंने नहीं लाई, एंसेस्टर से मिली है, गिफ्ट आ गई, अब क्या करें. अपने आप को और एंसेस्टर्स दोनों को हील कर सकते हो. इफ यू वांट टू डिस्कवर लाइफ पर्पस एंड सोल गिफ्ट्स, आप में से जितने लोग अपनी सोल को नर्चर करना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, अवेकन करना चाहते हैं, वांट टू मूव आउट ऑफ द रट ऑफ सो मेनी लाइव्स and also understand the soul purpose, also want to be awakening the soul gifts. जैसे मैंने कहा कि कुछ पिछले लाइफ्स की गिफ्ट्स हैं, उनको अवेकन करो. कुछ अपने सोल के गिफ्ट हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड रही हैं, उनको अवेकन करो. अगर किसी भी प्रकार के टॉक्सिक साइकिल्स बनते जा रही हैं इन योर मनी, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर हेल्थ, यू कैन बिगिन हीलिंग देम. यू कैन रिमूव टॉक्सिसिटी. और आप पास्ट लाइफ्स के इन्फ्लुएंसेस को बेटर समझ के, ज्यादा अच्छे से समझ के, अपने लाइफ को, अपने सोल को हील और ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर सकते हो. तो हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आकाशिक के मिथ्स क्या है, ट्रुथ्स क्या है, और फिर शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइजेस आज की. सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि कई लोग सोचते हैं कि ये प्रिडिक्टिव टूल है, लाइक साइकिक प्रिडिक्शंस. किसी की एनर्जी स्कैन करी बताया, किसी के एस्ट्रोलॉजी देखी बताया. जी नहीं, ये फॉर्चून टेलिंग मेथड्स नहीं है. ये आपको कोई भी तरीके का फिक्स्ड प्रिडिक्शन नहीं देने वाला है, पर आपको सोल लेवल का गाइडेंस देने वाला है. करंट एनर्जी चॉइसेस क्या बनानी चाहिए, कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला है, कार्मिक गाइडेंस देने वाला है, ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखाने वाला है जो कि शायद सर्टेनिटी नहीं बने, मतलब डेफिनेट होगा, कायम होगा, ऐसी एनर्जी नहीं, बट पॉसिबिलिटी तो है. और उसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सी है, ये आपको चूज करके आपकी डेस्टिनी को शेप करने में हेल्प करता है. सम पीपल बिलीव दैट ओनली अ फ्यू गिफ्टेड पीपल कैन एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड्स. जी नहीं, ये एक ट्रेनेबल स्किल है. यानी कि ये वाला नॉलेज, ये वाली विजडम जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही गिफ्टेड लोगों को दी गई है या दी जाएगी. अगर खुद को ट्रेन करना चाहते हो, एथिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो, और रोज प्रैक्टिस करने का या वीकली प्रैक्टिस करने का जब आप इंस्पिरेशन रखते हो, देन आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर सकते हो. इट इज अ ट्रेनेबल स्किल. नाउ सम पीपल बिलीव कि आकाशिक सिर्फ पास्ट लाइफ्स के लिए. जी नहीं, हम आकाशिक से सिर्फ पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं करते हैं. वी ऑल्सो चेक ऑन प्रेजेंट डे चैलेंजेस. वी ऑल्सो चेक ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकरिंग पैटर्न्स. अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो हम सिर्फ इस लाइफ में नहीं रिपीट कर रहे, बहुत लाइफ से कर रहे हैं, तो उसको इवॉल्व कैसे करें, और कैसे हम हमारे प्रीवियस इनकारनेशंस को भी हीलिंग दे, ये वाला डीप नॉलेज आकाशिक में है. अब एक और, जो इन जनरल जितने लोग आकाशिक कराने आते हैं वो मुझे पूछते ही पूछते हैं, सो आई थॉट ऑफ कीपिंग दिस एज अ क्वेश्चन, कि एक बार हमने रिकॉर्ड रीड कर लिए तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी? जी नहीं. दिस इज अ रीडिंग इनटू व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट वाज रॉन्ग. इसके बाद हम वर्क करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पे, या जो भी पर्टिकुलर चीजें दिखी उस पे, और धीरे धीरे
विद टाइम उसका असर दिखता है. देर आर टू थिंग्स. वन इज आकाशिक records reading, and the second is akashic records healing. जब आपकी रीडिंग हो तब आपका रीडर आपके लिए हीलिंग भी परफॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर चॉइस or the permission that is given by the realm of akasha. However, ये वाला जो चीज है वो आपकी सिर्फ रीडिंग से प्रॉब्लम को डिसअपियर नहीं करेगी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. इसके साथ हम शुरू करेंगे कनेक्शन विद द सोल. तो मुझे एक सवाल पूछना है इसके पहले. आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एंड वॉट एवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट, जस्ट टेल मी दैट वर्ड. मुझे सिर्फ एक शब्द में आपका आंसर चाहिए. whatever comes to your mind, just type that down in the chat window. Okay, relationship, soul purpose, okay. Money, okay, okay. Date of birth, wow, interesting. Soul purpose, okay. Mm-hmm. Name, belief, money, soul purpose, all right. Openness to receiving it, so true. Financial challenges, नहीं, challenges नहीं चाहिए हमें. What do we need to do our Akashic reading or someone else's Akashic reading? Dedication, connection, yes, absolutely. Absolutely. Person no. So today we are not talking about doing readings for others. Today we are only going to be talking about हम हमारे लिए क्या करें. Because Akashic reading soul first method है. What is soul first method? ये सुना है कभी? भगवान पूरी दुनिया का भला करो, शुरुआत मुझसे करो. ऐसी प्रार्थना सुनी है कभी? Right? We need to empower ourselves first. हमारे सोल को महत्व देना सिखाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, बिकॉज वी नीड टू बी बिगिनिंग विद आवर सोल फर्स्ट. इट इज अ सोल फर्स्ट मेथड. वी नीड just inclination, dedication, and 2 to 3 things that I'm going to be sharing with you right now. सबसे पहले हमें चाहिए हमारा कनेक्शन विद द सोल, जो हम दिन ब दिन लूज करते जा रहे हैं. The more we are running in the rut of life, the more we are putting ourselves in races. हम अपने आप को या सोल को ही पूछना भूल जा रहे हैं कि बता क्या चाहिए, बता क्या करना है. लेकिन आपके सोल के पास सारे आंसर्स हैं. एक सोल के पास क्या क्या है? एक सोल के पास क्या क्या है ये बताओ मुझे. लेट मी सी व्हाट आंसर्स डू आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कामनेस, ओके. लव, यस, एब्सोल्युटली. Silence, happiness, information, memory. Yes, you're right. Imprints, compassion. सोल के पास ये सारी चीजें तो है, ये वर्च्यूज है, ये क्वालिटीज है, हैप्पीनेस, लव, एटसेट्रा. बट आपके सोल के पास वो कार्मिक इम्प्रिंट है, वो स्ट्रक्चर है जो सोल ने ओवर लाइफ टाइम्स बनाया है. यानी कि जो सदियों से आप खुद हो, जो स्ट्रक्चर आपके आसपास क्रिएट हुआ है, उसमें है मेमोरीज. मेमोरीज ऑफ एवरी लाइफ.
how your soul has evolved, memories of every power, what you've achieved or lost, and memory of all that happened. तो जब आप अपने सोल से कनेक्ट करते हो, तो क्या ये वाला नॉलेज आप एक्सेस कर सकते हो? यस, नो, यस, ओके। हम जब आकाशिक से डिटेल्स लेते हैं, तो हम आकाशिक से क्यों डिटेल्स लेते हैं? व्हाट इज आकाशा? व्हाट इज आकाशा अकॉर्डिंग टू यू? आकाशा क्या है? ऐसा क्या है इन द रेल्म ऑफ आकाशा के हम वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे, हमारी सोल से कुछ नहीं लेंगे? हम क्यों हमारे सोल से कनेक्ट नहीं हो रहे? हायर realms, यूनिवर्स, ओके। हायर सेल्फ, स्पेस, हायर बीइंग्स, to heal the recordings of past present, okay. Realm where all the records are stored from past, yes. Library of our soul, yes. Akasha is like a universal repository of every soul's journeys. इस यूनिवर्स में, इस डायमेंशन में, इस प्लैनेट में नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितने सोल्स रहे हैं, उनकी हर एक जर्नी की एक, समझ लीजिए, मेमोरी की एक बैंक बन गई है, जो है इन द रेल्म ऑफ आकाशा। वहां पे क्या मेरी भी एक बुक है? मैं बुक कहूंगी बिकॉज इट्स, ऑल्दो इट इज मेमोरी एंड इट इज स्टोरीज, आई एम जस्ट स्टिल गिविंग इट अ मेटाफॉर ऑफ बुक्स। बिकॉज यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक मेटाफोरिक तरीके से इसको देख रही हूँ। तो वहां पे मेरी भी एक बुक है, आपकी भी एक बुक है, बहुत सारे लोगों की हर एक चीज है। तो इसको एक्सेस कौन दिलाता है? देयर आर मास्टर्स इन द realm of akasha who help us achieve that. ओके, एक क्विक चेक करेंगे, ऑल्दो वी आर गोइंग टू बी कनेक्टिंग विथ योर मास्टर्स टुडे, हम इसकी एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, बट फिर भी तीन मास्टर्स का एक क्विक चेक करते हैं, ठीक है? आई वॉन्ट यू टू चूज फ्रॉम पर्पल, गोल्ड एंड वाइट, थ्री कलर्स। सिर्फ एक कलर आप लिखोगे जो आपके मन में एकदम उभर के आ रहा है। पर्पल, गोल्ड एंड वाइट। जो कलर आपको अभी अट्रैक्ट कर रहा है वो मुझे बताएं। ऑलराइट, पीपल हु चोज पर्पल, आपके मास्टर हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन। पीपल हु चोज गोल्ड, आपके आकाशिक मास्टर्स हैं गोल्डन ड्रैगन्स। एंड पीपल हु चोज वाइट, आपकी मास्टर है गॉडेस क्वानियन। अब आप सोचेंगे ये कौन से नाम आ गए, ड्रैगन्स कहाँ से आ गए, ये सब क्या चल रहा है? आकाशा एक ऐसी रेल्म है जहां पे बहुत सारे कीपर्स हैं। क्या सिर्फ वो एंजल्स हैं? नहीं, सिर्फ एंजल्स नहीं। क्या सिर्फ वो ड्रैगन्स हैं? बिल्कुल नहीं। गॉड गॉड गॉडेसेस हैं? सिर्फ वो नहीं है। देर आर सो मेनी कीपर्स, सो मेनी पीपल। वो एक अपने आप में एक बड़ी सी सिटी जैसी लाइब्रेरी है, उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड मेनी मेनी कीपर्स आर टेकिंग केयर ऑफ इट। But everyone's favorite largely is Archangel Metatron because of the kind of help he does. But there are dragons who are supporting the realm of Akasha. आज ही याना's हीलिंग स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पे
हमने एक वीडियो पोस्ट करा है. आई वुड वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट एंड गेट टू नो अबाउट द कीपर्स ऑफ आकाशा. आई एम श्योर छोटा सा ही वीडियो है, यू आर गोइंग टू बी लविंग इट. नाउ, how many of you after this are excited to connect with your Akashic Masters? तो हम करेंगे क्या? ठीक है, we are going to be invoking their presence with us, and we are going to be asking them one question, and whatever comes your way, just receive. इसके साथ आपको क्या चीजें रेडी रखनी है? आकाशा या आकाशिक रीडिंग्स जब हम करते हैं, एक चीज करना बहुत जरूरी है, टू कीप योर बुक एंड पेन रेडी एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड नो कि आपको आंसर्स कौन से फॉर्मेट में आ सकते हैं. आपको आंसर्स आ सकते हैं लाइक वर्ड्स, लाइक सिंबल्स, लाइक वॉइसेस, लाइक इंस्पायर्ड थॉट्स, इमोशंस, या किसी तरीके का मेटाफोरिक विजुअल भी आ सकता है. एंड ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली राइट. इसमें कोई गलती है ही नहीं. इट्स योर ओन वेरी यूनिक वे टू कनेक्ट विद देम. तो हम स्टेप नंबर 1 यहां से शुरू करेंगे कि हम सबसे पहले हमारे आकाशिक मास्टर्स को जानें. तो आपको 2-3 चीजें नोट डाउन करनी है. व्हेन यू आर कनेक्टिंग, यू आर गोइंग टू बी नोटिंग डाउन any kind of guide, guru, master, god, goddess, whoever you see there, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए याद रख सको. और जब हम क्वेश्चन पूछ ले तो उसके बाद आपको जो भी आंसर आएगा उसको भी आपको नोटेड डाउन रखना है. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? यू कैन रेज योर हैंड्स नाउ, आस्क मी, एंड वी आर गोइंग टू बी बिगिनिंग विद दिस प्रोसेस. अगर आप कोई भी चीज में एक्टिव हो तो थोड़ी देर के लिए आप वो एक्टिविटी अगर छोड़ पाओ आप छोड़ दो, अदरवाइज आप ये मेडिटेशन बाद में कर सकते हो. बट आई वुड वांट योर फुल अटेंशन एंड फुल डेडिकेशन व्हेन यू आर डूइंग दिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है. नोइंग योर गाइड इज लाइक बिल्डिंग और रीबिल्डिंग दैट ब्यूटिफुल बॉन्ड जो हमने हमारे गाइड्स के साथ शायद किसी एक जन्म में किया हो, या ये पहला जन्म हो या 50वां हो. इट्स ऑलवेज फन and very interesting to work with them. आप में से जितने लोग टर्न ऑन कर सकते हैं अपना कैमरा एंड सिट हियर so that I can observe you, please do that. We're going to be beginning. I've not received any question as yet, so I'm believing we all are excited and ready. So let's get going. Those of you who would want to sip some water, please do it now. Take a deep, deep breath. Deep, deep breath and close your eyes. Gently exhale out through your mouth. Another deep breath, gentle exhale out through your mouth. Relax yourself completely. Let the weight of your body settle, supported by the earth beneath you. Tune in
to your sacred time, and it is right now. Take another deep breath and go on releasing all your thoughts, worries, and the energies that are not yours to carry right now. Let your awareness drop from the mind to the heart. And visualize a golden orb of light beginning to form above you. आपके बस क्राउन से थोड़ा सा ही ऊपर. But you know that the connection is coming from far, far away. बादलों से भी ऊपर, across dimensions. जहाँ ये realm of आकाशा है, वहाँ की एक golden ray, golden orb को आप तक लेकर आई है. This golden light holds the energy of wisdom, soul memory, and divine love. और इस लाइट के अंदर आपको एक ब्यूटीफुल शेप फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है. और वो शेप है आपके आकाशिक रिकॉर्ड कीपर का. And they are carrying the vibration of compassion, truth, and eternity. Watch as they descend from the Akashic realm, gracefully, gently bringing your soul's wisdom with them. शायद वो वाइज एल्डर जैसे दिखे या फिर एंजेलिक प्रेजेंस दिखे, कोई गॉडेस, कोई ड्रैगन या सिर्फ एक रेडियंट लाइट दिखे. योर सोल knows your keeper. Trust what you see, sense, or feel, even when it is subtle. And जैसे जैसे your guide, your keeper comes closer to you, you can feel the shift in energy around you. It is sacred, it is calm, and it is pure. And now as they stand before you, their heart open, eyes filled with love, unconditional love, they speak to you directly through vibrations without any words, and their energies speak to you, saying, I am the keeper of your soul's record. I have walked with you through lifetimes. I hold the truth of your purpose, your pain, your power. And I'm here because you are ready to remember. You take a deep breath and very gently go ahead and ask, what soul insight am I ready to receive now?
मेरा सोल कौन सी इंसाइट रिसीव करने के लिए तैयार है। And go on receiving ideas, guidance, or a message. Be still. Let the message come. It may be a word, a symbol, an image, or a feeling. Let your heart receive it fully without analyzing or doubting. If you feel like asking, what do I need to heal, shift, or embrace at this moment in my journey? आप वो पूछ सकते हैं and again be open to what arises. Your record keeper now places a light, a small luminous symbol into your heart. This is a seed of remembrance and activation. It will continue to grow and guide you. It will continue to grow even after this meditation ends. Take a deep breath and say thank you to this guide. Smile at your guide. And your record keeper slowly ascends back to the realm of Akasha, leaving you blessed, empowered, and more connected to your soul than before. And take a deep, deep breath. And slowly return to the awareness of energy of your body. Be aware of your breath, your space. Wiggle your toes, your fingers. And join me as we thank all our guides, gurus, masters, teachers, spirit guides, and guardian spirits. Thank the universe. We thank the God and all the souls who helped us in this life. With this Sai Sthiti, thank you for receiving this from me. Thank you so much. Whenever you feel ready, rub your palms and warm your eyes. Warm your shoulders, your arms, giving yourself a beautiful hug.
And very quickly, you can write that one word that you felt during this meditation. First, note it down in your book. If you received any symbol, you received anything, any information, and then we will move forward. I would want to know, what all did you feel? Change. What kind of change? Fly? Were you flying? Wow. Loved it. Thank you so much. How many of you were able to see your guides? Or you saw something that needs to change? Beautiful guide. Amazing. I hope you begin doing it as soon as possible. Yeah, you should not take time doing this. You saw your guide. Amazing, amazing. Merlin. Beautiful. Compassion. Very interesting. Right. Dragon. I resonate with you. Greek god. Amazing. Gush of water. Pendulum multicolor with feather. Unicorn is very interesting. Thank you so much for sharing your deep, deep experiences with me. Thank you. You saw a number that also is very interesting. 101. Phoenix. Wow. Felt the guide, saw their colors, green, purple, Archangel Metatron, Guardian Dragon. Wonderful. Powerful meditation. I saw some shape of an angel and golden tide. Awesome. You saw a symbol. So I hope this symbol that you have seen showers upon you very, very soon. All the very best. Right. So this was one of the ways we can receive guide from who? Our Akashic keepers. Who are our Akashic keepers? अब ये तो मैंने बता दिया कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे कीपर्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। वो रिकॉर्ड देखते ही वो एक्सेस कर पाते कि भैया ये सोल ने इतने लाइफ टाइम्स में क्या करा, ये सोल कैसे इवॉल्व करा है, अभी भी क्या बाकी है, कैसी जर्नी है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। एंड दे आर वेरी नॉन जजमेंटल। बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई बायस के वो आपको देखते जाते हैं, वो आपको करते जाते हैं। वो ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपको, चलो जजिंग की बात तो बहुत अलग है, दे आर वेरी हाई लेवल बीइंग्स, but they are constantly ready to help and support you. Constantly ready to help and support you. अब हमें क्या करना है? हमने हमारे मास्टर्स को आइडेंटिफाई करा है। अब एक चीजें हमें जाननी है कि जो लर्निंग आप कर रहे हो या करने वाले हो, उसमें एनर्जेटिक परमिशन और इंटेग्रिटी का कितना महत्व है। आप जो अभी इस वेबिनार में लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस करोगे आगे चल के, यू विल रिसीव रीप्लेस। दोज ऑफ यू जिन्होंने आज अटेंड करा है, उनको रीप्ले लिंक्स ईमेल कर दिए जाएं। और एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू बी रिसीविंग आर द हैंडआउट्स ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिंग स्टेटमेंट्स। लेकिन we've chosen to give it out to only those few जो हमारे लिए एक गूगल रिव्यू छोड़ दे। वट एवर इट इज, यू जस्ट राइट योर जेन्यून फीडबैक। अगर आपने आज कुछ लर्न किया, आज कुछ ये करा, तो हम हमारे गूगल रिव्यू लिंक्स आपसे शेयर करेंगे। दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू बी राइटिंग अ रिव्यू, वी विल email you, or else when you send the screenshot to us, we'll give you those ready handouts given to you right away ताकि आप वो यूज कर पाओ।
तो अभी हमने करा है हमारे गाइड्स को आइडेंटिफाई। अब बात है परमिशन की। शुड वी बी डूइंग दिस ओनली फॉर आवरसेल्व्स और अदर्स? क्या ये चीज मैं अपनी मॉम के लिए करूं, क्या ये चीज मैं अपने फादर के लिए करूं, फ्रेंड के लिए करूं, शाहरुख खान के लिए करूं, किसके लिए करूं? आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हो। हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स? पेरेंट्स, चिल्ड्रन, पार्टनर, सिबलिंग्स। इसके अलावा यू नीड पीपल्स परमिशन। इट्स नॉट एथिकली राइट टू गो इनटू समवन एल्सेस एनर्जी एंड स्टार्ट चेकिंग ऑन देम। तो वो आपने नहीं करना है। सेकेंडली, some of you may not even be attuned to the realm of Akasha, or could be a very new experience for you to be going in. तो इसलिए कोई हर चीज आपको खुद तक लिमिट करनी है। ये वाली चीज जो आप सीखे हो आज, वो भी धीरे 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 विद टाइम यू विल इवॉल्व टू स्टार्ट डूइंग इट फॉर अदर्स। तो नंबर वन था कि हम हमारे गाइड से इंफॉर्मेशन ले। क्या हम हमारे सोल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। हमारे सोल के पास तो सब कुछ है, बट सोल के पास से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर उसके ऊपर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का वर्क कैसे करना है, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऑन सैटरडे 11:30। तो आज हम और क्या करने वाले हैं? आज हम और कुछ नहीं करने वाले। आई वॉन्टेड यू टू बी नोइंग योर गाइड्स, बट एक चीज जो मैं आपके लिए करने वाली हूँ, करना चाहती हूँ, is just sharing of little bit of information of my Akashic Records Master Workshop। मैं जो आपके लिए लाई हूँ, लाने वाली हूँ, वो कोई भी ऐसी वैसी वर्कशॉप नहीं है। इट इज डायरेक्टली मास्टर लेवल। कई बार आकाशिक रिकॉर्ड्स के वर्कशॉप को ब्रेक किया जाता है। ये लेवल 1 है, इससे आप इतना ही करोगे। ये लेवल 2 है, आप इसमें ये आगे बढ़ोगे। आपको मास्टर बनना है तो आप ये करो, आपको ये करना है। मैंने वो सारी चीजों को एक ही में मर्ज कर दिया है। एक ही वर्कशॉप है, आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर लेवल वर्कशॉप। तो उसके डिटेल्स, सॉरी, उसके डिटेल्स और ऑफर्स मैं आपको देना चाहती हूँ। इसके अलावा मास्टर के भी प्रो बनना है तो आप क्या कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो डू आई हैव योर परमिशन टू शेयर दैट विथ यू? यस। सो प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर वर्कशॉप। ये वर्कशॉप एक्चुअली हर किसी के लिए है, चाहे आप बिगिनर हो, प्रो लेवल हो, रीडिंग्स करते हो, कर चुके हो, आकाशिक सीख चुके हो चाहे कितनी बार। ट्रू विजडम से सीखना है, ट्रू सोल लर्निंग से सीखना है, तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आपके पास आने वाले हैं जो शायद आप पहली बार सीख रहे होंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस से इसके लिए कह पा रही हूँ बिकॉज मैंने इतने सारे आकाशिक स्टूडेंट्स को सिखाया है जिन्होंने ये वर्कशॉप मेरे पास दोबारा करी है, जस्ट टू रिसीव सर्टेन काइंड ऑफ इनसाइट्स एंड विजडम जो उन्हें तब तक नहीं मिला था। तो ये वाले वर्कशॉप में आप सिर्फ प्रेयर्स कैसे करें, टेक्निकलिटीज क्या है, ये नहीं सीखोगे। आप बहुत ज्यादा डीप लेवल में जाओगे। यू विल लर्न टू हील योर रिपीट लाइफ पैटर्न्स, हील योर कार्मिक वुंड्स, डिवाइन गाइडेंस से कैसे क्लैरिटी पर्पस करे, सोल प्लान को कैसे समझे। इनफैक्ट इस वर्कशॉप से बहुत सारे लोगों ने क्या क्या हील करा है। लोगों ने उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करा है, कोई कर्स्ड स्पेसेस थी उनको हील करा है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के हेल्थ को ठीक करा है, अपने रिलेशनशिप्स को माशाअल्लाह बनाया है। इसके अलावा भी कई कई बार कुंडलियों में कई कई दोष होते हैं।
आई हैव सच ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट नहीं करा और उसमें सक्सेस मिला है उनको। तो वो कुंडली के कई तरीके के दोष, जैसे कि नाग दोष, काल सर्प, इन सब पे भी उन्होंने वर्क करा है। इस सारे इंसाइट्स कैसे करा, क्या स्टोरी से, हम इसमें जानेंगे। अपने सोल पर्पस और हाईएस्ट पोटेंशियल को कैसे रीच करे, पास्ट लाइफ के पावर्स को कैसे एक्सेस करे, ये भी जानेंगे। तो ये वर्कशॉप डिजाइन करी गई है आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स का रीडिंग मास्टर बनाने की। यहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं होगा कि सिर्फ लेवल 1 सीखो, इसमें आप ये करोगे, फिर लेवल 2 में जाओ, वहां आप ये करोगे। यहाँ आपको मिलेगा सब कुछ, उसके ऊपर भी बहुत कुछ। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपनी सोल को आगे बढ़ाना चाहता है, रुकना नहीं। क्योंकि ये वाले जो बोनसेस और वर्कशॉप में लेकर आई हूँ, इट इज फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स आई एम गिविंग देम आउट। सबसे पहले बोनसेस के बारे में बात करूंगी। विद दिस वर्कशॉप आपको मिलेगा एज अ बोनस इन अट्यूनमेंट विद आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आप इस वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग्स 1 साल तक अपने पास रख पाओगे। यू विल हैव 6 months व्हाट्सएप सपोर्ट फ्रॉम अस। प्रैक्टिस सेशन एक नहीं, मल्टीपल होते जाएंगे। एक स्पेशल सोल जर्नी मॉड्यूल हम सीखेंगे, और एक 15 मिनट्स आकाशिक रीडिंग मैं आपकी करूंगी। तो यूजुअली क्या, इन बोनसेस की ही फी बनती है 37,553 रुपीज या $495, but that is not something you're going to be paying. अगर मैं कहूँ कि हर चीज आप कैसे मास्टर बनो, जब मैं बोल रही हूँ मास्टर बनो, यानी कि आप उस लेवल तक पहुंचोगे कि आप किसी और को सिखा सकते हो, आप किसी और को अट्यून कर सकते हो। उसकी फीस सिर्फ 25,000 समथिंग, दैट इज चेंजिंग द होल गेम, द होल लाइफ, एंड मेक्स यू टू बिकम अ टीचर, attunes you to become a teacher is only for $330, 25,000. Imagine. ये वर्कशॉप्स इससे भी कम टाइम के, इससे भी कम इंफॉर्मेशन के, टुडे आर गेटिंग सोल्ड एट रुपीज 1 लाख रुपीज, जो आपको मिल रहा है 25,000 में, विद फुल सपोर्ट। तो टोटल वर्कशॉप का जो वैल्यू हो रहा है ना, 25,000 प्लस बोनसेस कम टू ₹62,553, यानी $330। बट आज के पहले 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए आई एम गिविंग इट आउट एट ₹21,000 और $276। दैट्स इट। ये है मेरा पहला पैकेज जिनको बनना है आकाशिक मास्टर्स, और ये डील ऑन रहेगी ओनली एंड ओनली टिल 25 जुलाई। तो मेरी ये वर्कशॉप का स्केड्यूल जो लोग जानना चाहते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग on 4th and 5th of August, and will continue to be happening on every Monday and Tuesday. तो हर मंडे और ट्यूसडे रात के 8 से 10 बजे ये वर्कशॉप होगी। कम से कम 8 सेशंस होंगे, यानी कि एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ मंथ। इस दौरान आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी दिया जाएगा, और मेडिटेटिव सपोर्ट भी दिया जाएगा। बट अगर आप बनना चाहते हो मास्टर के भी प्रो, तो आपको और क्या क्या चाहिए। तो आपके लिए हमने बनाया एक ऐसा बंडल ऑफर जिसमें है आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर वर्कशॉप, आकाशिक टैरो डेक रीडिंग वर्कशॉप। तो आप में से जितने लोग कार्ड्स के साथ कंफर्टेबल है, तो उसमें भी आप आकाशिक नॉलेज कैसे ज्वाइन करो और आकाशिक टैरो यूज करके कार्ड रीडिंग कर पाओ। और एक बहुत स्पेशल वर्कशॉप मिलेगी जहां आप कनेक्ट कर सकते हो विद द गोल्डन ड्रैगन ऑफ आकाशा। उनके साथ उनका अट्यूनमेंट भी बकायदा मिलेगा। So let me give you details of first the tarot deck reading workshop. इसमें वही सारी चीजें आप सीखते हो, करते हो इन अ कार्ड फॉर्मेट। कैसे मेजर आर्काना, माइनर आर्काना ऑफ कार्ड्स हम डिफाइन करते हैं, उनके स्प्रेड्स कैसे करते हैं हम, सोल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर
स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कार्ड से। हम डेली गाइडेंस कैसे ले खुद के लिए, औरों की आकाशिक रीडिंग कैसे करें, उसकी हर प्रैक्टिकलिटी इसमें आपको सिखाई जाएगी। द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस वर्कशॉप इज ₹9,999 या $132। अब गोल्डन ड्रैगन ऑफ आकाशा इज द फैसिलिटेटर of aiding your readings and keeping you protected while you do your work। आपके कार्मिक हीलिंग से लेकर एनर्जेटिक प्रोटेक्शन से लेकर क्लैरिटी, ट्रूथ, इनर गाइडेंस तक, ये वर्कशॉप आपको ले जाता है। कम्स विथ एन अट्यूनमेंट। आप ये अट्यूनमेंट लेकर बाद में ये नॉलेज औरों को भी पास कर सकते हो। द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस वर्कशॉप इज ₹7,999 और $105। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं कंसिडर करूं कि आपको आकाशिक मास्टर भी बनना है, टैरो भी सीखना है, गोल्डन ड्रैगन ऑफ आकाशा भी सीखना है और सारे बोनसेस, तो बनता है ₹80,551 और $1057। बट दैट्स नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू बी पेइंग। ये सारा सारा का सारा पूरा बंडल आपको मिल रहा है एट ₹36,999 या तो $473। अभी चाहे तो आप सिर्फ 10,000 पे करके ये डील को लॉक कर सकते हो। यहाँ अगर आप बैठे हो, आपने मेरे साथ आकाशिक पहले भी कर लिया है, एंड इफ यू वांट टू जस्ट गो इन फॉर रेस्ट ऑफ द बंडल्स, यू मोस्ट वेलकम। पर कंप्लीटली नया जाना चाहते हो, यू वांट टू नॉट ओनली बिकम द मास्टर बट द प्रो मास्टर, तो ये बंडल प्राइस शायद दोबारा नहीं आएगा। तो पैकेज ए जो मैं आपके लिए लाई हूँ, विच इज 21,000, एंड दैट इंक्लूड्स आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर वर्कशॉप। और पैकेज बी है जिसमें सारा बंडल है, आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर, आकाशिक टैरो एंड गोल्डन ड्रैगन ऑफ आकाशा की स्पेशल अट्यूनमेंट, स्पेशल लर्निंग। आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं can look at the links that are shared with you in the group and here। आज जो हम कर रहे हैं, करते आए, इज ओनली अ ट्रेलर। आकाशा एक ऐसी चीज है जहाँ हम मेडिटेटिव तरीकों से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, और वही हम करेंगे हमारे वेबिनार्स के साथ भी। आज वी कनेक्टेड जस्ट विद द मास्टर्स एंड गाइड्स। ऑन सैटरडे क्या मैं आपको एक स्नीक पीक दे सकती हूँ कि सैटरडे हम करेंगे क्या? सैटरडे हम डिस्कवरी करेंगे हमारे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की। बट ऐसा हो सकता है, जैसे हर बार होता है, हर 2 दिन में हमारे वर्कशॉप के फीस चेंज हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज जो फी है वो सेम प्राइस आपको सैटरडे ना मिले। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कैन गेट इन टच विथ अस, माय टीम मेंबर्स, क्लिक ऑन द लिंक। आज के दिन के लिए हम ओपन टू बी रिसीविंग योर क्वेश्चंस एंड हैव वन रिक्वेस्ट फॉर यू। सैटरडे के दिन हम करने वाले हैं बहुत तगड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट काम, which is about identifying and discovering your soul contracts, which is very very deep rooted work। आज का वर्क फिर भी लाइट रहा है, सैटरडे नहीं होगा। So at that point in time, if you think you want to be helping your friends, family members, get them along and do not miss out on that day। So people who attend will receive the recordings. I will see what I can do for people who have different timeline. Do not worry about that. Any questions that you would want to be asking?
All right. So the links will be shared in the group, and be ready, be prepared, be hydrated for the work that we will be doing on Saturday. Sounds good. How many of you enjoyed today's work, meeting your guides? Thank you so much. I enjoyed it too. I can see your smiles, I can see your thumbs ups. Thank you so much. I see a raised hand. Would you want to unmute yourself and ask? Mitaji, do you want to unmute yourself? Thank you, thank you. I too enjoyed. And so Actually, this, is that Ritika? I think he joined, she joined. So she's got her hand raised, I think. okay, right. So thank you so much for joining me, everyone. I will see you on Saturday. Saturday, बिल्कुल भी miss out नहीं करना, because we are going to be doing one important work of identifying a soul contract. और उसके बाद हमारा हैंड आउट यूज करके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रिलीज करें, ये हम सीखेंगे ऑन सैटरडे. Get your friends and families along, and we will be taking it forward with more seriousness, with more power. And with this, taking everyone's leave with a prayer that may you find your soul purposes, strength, guides, and so many blessings in your life sooner than you think. And भगवान का, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा सब पे बना रहे. Thank you so much for joining.